जी, अभी 1 महीने पहले ही डाकू महाराज आया था, उसमें आई प्लेड द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर और Okay. उसमें बहुत अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं मेरे। मैनरिज्म्स भी देखोगे तो लॉट ऑफ टाइम्स आई डूइंग Yeah. एंड right, दिस right. एंड दैट इज लाइक वेरी वेरी फियर्स। इस फिल्म का जब रोल ऑफर हुआ था तो द मेकर्स दे आस्क्ड मी 3 टाइम्स, आर यू अ जाट, आर यू फ्रॉम जाट कम्युनिटी, आर यू अ Okay. जाट, they kept on asking me. तो आपको मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है ट्रोलर से, whatever they say you don't take it personally. Actually, I don't watch all that Okay. because it's not good for mental health. Mm. So, hello everyone. Hi, I'm Urvashi Rautela, and you're watching me only on Bollywood Hangama. Hello everyone, welcome to Bollywood Hangama. This is Mrinal and today we have the gorgeous Urvashi Rautela with us. Hi Urvashi. Hello, hi. How are you doing? Very well. It's a pleasure to have you. Thank you so much. So जैसा आपका नया सॉन्ग आया है, आप Mhm. बहुत प्रिटी लग रही है, your moves are killer. So how different is this song from your previous projects, previous songs? So this one, it's a first single from our film called Jat. It's called Sorry Bol Touch किया। तो जब आपने ट्रेलर और टीज़र भी देखा होगा तो उसमें सनी देओल बहुत बार बोल रहे हैं कि सॉरी बोल, सॉरी बोल। इन द सिमिलर मैनर जो लड़की है वो भी बोल रही है, दिल तुझको ही दूंगी पहले सॉरी बोल, दिल तेरा ही लूँगी पहले सॉरी बोल। सो आप सॉरी बोल का सिग्निफिकेंस आपको तब पता चलेगा जब आप फिल्म देखेंगे 10th of April को। देन यू विल गेट टू नो कि वो क्यों सॉरी बोल रहे हैं। और इनफैक्ट लाइक गाने में स्पेशली इस हमारे सिंगल में दिस सॉरी बोल टच किया में, अकॉर्डिंग टू मी हमने डांस ही नहीं किया है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पर्सनैलिटी ऑफ अ लायनस। क्योंकि जो म्यूजिक कंपोज किया है थमन ने उसमें बहुत ज़्यादा एनिमल नॉइजेज हैं, स्पेशली लायनस के। इसलिए आप मैनरिज्म्स भी देखोगे तो लॉट ऑफ टाइम्स आई डूइंग and this and that is like very very fierce. It has a lot of essence of a lioness, so I'm just playing this character of a lioness. That's it in this song called Sorry Bol. So it's more of like that. Yeah. So you told that you worked with Sunny Deol in this song. How was the experience working with him and other actors too? I don't know, like it's after 12 years, you know, Sunny Deol, he launched me. He gave me my big Bollywood break as a leading actress in Sings Up the Great. मैं बस I really hope कि मैंने उनको proud किया अपनी journey में, और I just want to see him happy and I really hope कि जाट जो हमारी फिल्म है वो गदर 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक करे। That's what I really hope it happens. I don't know कि क्या होगा, वो तो पूरा ऑडियंसेस के ऊपर है, बट आई रियली होप, क्योंकि फिल्म पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। और साथ ही साथ जब इस फिल्म का जब रोल ऑफर हुआ था तो द मेकर्स दे आस्क्ड मी 3 टाइम्स, आर यू अ जाट, आर यू फ्रॉम जाट कम्युनिटी, आर यू अ जाट, they kept on asking me, so I was like, you know, thank you so much कि उन लोगों को ऐसा लगा that I'm from Jat community, because I feel Jats especially, they're very very attractive. They have amazing physical attributes and they have a nice personality, they're courageous, they're very straightforward, और बहुत ज़्यादा like, you know, it's like nice, you know, they're very they just like they say what they feel, और बहुत ज़्यादा straightforward होते हैं, तो इसलिए। Okay. जैसे आपने बोला आपकी जर्नी है, you know, 12 साल की जर्नी है, तो उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा आपको फिल्म इंडस्ट्री में, और you know, आपने कैसे ओवरकम किया उसे? I think the challenging part for any talented actor, the challenging part is always to have that role, you know, a film, a project where you actually feel has the potential to do something good for your career. Okay. शुरुआत से ही it's very important to have right projects and to work with right directors. Right. Otherwise everything is futile, you know. So yeah, I think that is the most challenging part, to work with the right set of directors who are working with the right intention, and in totality just you know, working in good films. Okay. तो ऐसे कौन से रोल्स हैं जो हम आपको करते हुए देखेंगे आगे, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग यू नो सॉन्ग्स एंड यू नो ऐसे अलग रोल्स जैसे कि एक्शन है
या फिर यू नो इंटेंस रोल है, आपने हेट स्टोरी 4 में किया है, बट यू नो एनीथिंग, अभी ऐसा होता है कि बहुत बार अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉनर कर लो या प्रोजेक्ट कर लो तो सिमिलर टाइप के रोल्स आपको ऑफर होते हैं, तो ये क्या आपके साथ भी होता है या यू कॉन्शियसली मेक दैट डिसीजन? जी, अभी 1 महीने पहले ही डाकू महाराज आया था, उसमें आई प्लेड द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, और उसमें बहुत अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं मेरे। आपको जब भी टाइम मिलेगा प्लीज़ देखिएगा। श्योर श्योर। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड स्कोप फॉर एक्शन, और मुझे एक्शन करना भी बहुत पसंद है, बट आई रियली होप कि कोई ऐसी फुल फ्लेज्ड एक्शन फिल्म मिले तो और मज़ा आ जाए। और ऐसे कौन से डायरेक्टर है यू नो बॉलीवुड में आप जिनके साथ काम करना चाहेंगी, या फिर कोई एक्टर है जो आप हमेशा से करना चाहती थी अभी भी करना चाहेंगी? मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स पसंद हैं, जिनका नाम है एस एस राजमौली, सुकुमार गारू, प्रशांत नील गारू, एंड यू नो करण जौहर एंड संजय लीला बंसाली। सो आई लाइक राजकुमार हिरानी। और कोई एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी, जिनके साथ आपने पहले काम नहीं किया? आई लव शाहरुख खान, आई लव सलमान खान। मैं शाहरुख खान के संग काम करना चाहती हूँ, एंड सलमान खान के संग काम करना चाहती हूँ। यू नो आपकी जितनी जर्नी रही है आज तक, ऐसा कोई एक यू नो एक मोमेंट है जो आपको रीलिव करने का मौका मिले तो आप करना चाहेंगी, जहाँ पे आपको लगा कि यू नो आई थिंक आई हैव मेड इट, ऐसा कोई मोमेंट? नहीं, रिलीव क्यों करना है, जो अच्छी जर्नी थी, अच्छे मोमेंट्स थे, वो आए और उसी टाइम पे अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिए। अब आई रियली होप उससे बड़े बड़े मोमेंट्स आए लाइफ में। तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो, आप शेयर करना चाहेंगी? बहुत सारे मोमेंट्स, बिकॉज मैंने थिएटर हॉल में सबसे पहली फिल्म का होना प्यारा ही देखी थी, which had ऋतिक रोशन एंड राकेश रोशन। सो जब मुझे ऑफर आया था फ्रॉम ऋतिक रोशन, राकेश रोशन टू बी पार्ट ऑफ काबिल, आई थिंक वो एक मोमेंट है जब मैंने मिस यूनिवर्स को जज किया एज द यंगेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ मिस यूनिवर्स। वो एक मोमेंट है। कई सारे मोमेंट्स हैं लाइफ में जो बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ के, और मैं यही चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स आए लाइफ में। और क्या आप कभी सोचती है यू नो टू वर्क इन OTT एज वेल? आपने OTT नहीं किया है, फिल्म्स किए हैं, तो OTT में कभी हम आपको देखेंगे? OTT व्हाई नॉट, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट तो बिल्कुल करना चाहेंगे, और फिल्में भी कुछ टाइम के बाद OTT में ही आ जाती हैं। सो बट या इफ़ कोई इंटरेस्टिंग रोल है, और इफ़ आई लाइक सम सब्जेक्ट विद इंटरेस्टिंग डायरेक्टर, देन व्हाई नॉट। ओके, कोई जॉनर स्पेसिफिक आप करना चाहेंगे? पीरियड फिल्म, लाइक एक्शन, मे बी प्लेइंग अ रोल ऑफ अ क्वीन और सो जैसे होता है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग्स होती है बहुत ज़्यादा, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है ट्रोलर्स के लिए? एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि जो भी लोग कुछ भी कह रहे हो, वन शुड नेवर टेक इट पर्सनली कभी नहीं लेना चाहिए किसी की भी बातें। नॉट एवरीबडी टॉक्स यू कैन टेक पर्सनली। सो मेरा वही मानना है उस चीज़ को लेकर के, बाकी और कुछ नहीं। तो आपको मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता है ट्रोलर से, व्हाटएवर दे से यू डोंट टेक इट पर्सनली? एक्चुअली आई डोंट वॉच ऑल दैट, ओके, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। राइट, ओके। क्या आपको लगता है आपका एज अ क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एक्टर है, ये कहीं ना कहीं ओवरशैडो करता है इन टर्म्स ऑफ इन द यू नो माइंडसेट ऑफ पीपल, बिकॉज यू आर अ पैजेंट विनर, तो यू नो पीपल मेनली फोकस ऑन द ब्यूटी एंड एवरीथिंग, और कहीं ना कहीं दे डोंट यू नो सी एज एन एक्टर। सो ब्यूटी पैजेंट बैकग्राउंड, आई बिलोंग फ्रॉम ब्यूटी पैजेंट बैकग्राउंड, वो मेरा पास्ट है। एंड मेरे गुरुज हैं जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, शर्मिला सेन, लारा दत्ता, वो अच्छे, उन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट ही नहीं किया थे, वो लाइक सुपर अमेजिंग ब्यूटी क्वींस, पर एट द सेम टाइम बहुत अमेजिंग कलाकार और एक्ट्रेसेस भी थे। इनफैक्ट आप वंडर वुमन की बात करें, प्रियंका चोपड़ा, दे ऑल ऑफ ब्यूटी पैजेंट बैकग्राउंड। सो ये तो एक तरीके से सोने पे सुहागा ही है फॉर मी, यू नो दैट ये एक चीज़ है जो मुझे मेरे बाकी कंटेम्प्रेरीज से अलग दर्शाती है। और गैल गैडोट की आप बात करोगे, हेल बेरी जिन्होंने ऑस्कर्स जीते हैं, दे ऑल वर ब्यूटी क्वींस, वो मिस यूनिवर्स का हिस्सा रही हैं। सो आई रियली फील कि ये एक लाइक यू नो एक एडेड बोनस है। It can never be a disadvantage. It has a lot of advantages. So मतलब आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि you know just because you are an outsider, कुछ रोल्स होते हैं जो you know they kind of not consider you, and you know they might consider some star kid or people like that. Is it difficult being an outsider?
Yes, it's very challenging. For Mhm. all the outsiders, it's very challenging. For people who are from here, it's way more easier for them. Yeah. So you know, my heart goes out to all the outsiders. जो भी इतना मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, I'm very proud of all of them, including me. Yeah, even we are proud of you.